विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में कहानी नंबर 3 यानी कि पाठ नंबर 3 समझदार नन्ही जो है कहानी, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव छोड़ना चाहिए नहीं, यह प्रस्तुत कहानी में हमें बताया गया है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव कभी छोड़ना चाहिए नहीं। तो यहाँ पे हमारे सामने एक चित्र है, तो चित्र के आधार पर हमें पूरी कहानी समझनी है। उसके बाद हमें इस कहानी से क्या बोध मिलता है यह हमें देखना है। तो यहाँ पे हमें एक तालाब दिखता है, तालाब में हमें यहाँ पर एक बतख और बिच्छू भी दिखता है। तो आज हम इस दोनों के बारे में पूरी कहानी की पढ़ाई करेंगे। नन्ही बतख तट पर आई और उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। नानी बतख તળાવ પાસે આવે છે અને ત્યાં જોઈ છે કે એક વીછી કાદવમાં ફસાઈ ગયેલો જોવા મળે છે। बिच्छूને नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। શું કરે છે? વીછી નન્હીને प्रार्थना કરે છે કે બેન તું મને બચાવી લે। नन्ही को उस पर दया आ गई। શું એટલે કે નન્હીને એની પર દયા આવે છે। उसे बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। એટલે શું કરે છે કે વીછીને નન્હી શું કરે છે? કાદવમાંથી सूखा स्थान ઉપર મૂકી દે છે। बिच्छू की शैतानी सूची એટલે કે શું થાય છે કે વીછીને શરારત કરવાનું સમજમાં આવે છે, સમજ પડે છે। उसने नन्ही को डंक मार दिया। શું કરે છે વીછું કે નન્હીને ડંક મારે છે। નન્હી પીડા से તડપ ઉઠી। શું કે એને દર્દ થાય છે, દર્દથી એ ખૂબ જ કંપી જાય છે। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा। શું થાય છે કે बिच्छूને પૂછે છે કે ભાઈ તે મને ડંક શેના માટે માર્યો છે। बिच्छू लापरवाही से बोला એટલે કે એ બેદરકારીથી બોલે છે। क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। વીછી શું કહે છે? એકદમ લાપરવાહીથી કહે છે હું શું કરું, ડંખ મારવાનો મારો સ્વભાવ છે। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। नानी શું બોલે છે કે તારી આ ગંદી આદતને છોડી દે, ત્યારે તું મુસીબતમાં હોઈશ ત્યારે તારી રક્ષા કરવા માટે કોઈ પણ આવશે નહીં, તારી મદદ કોઈ પણ કરશે નહીં। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। એટલે શું કરે છે કે વીછી જે હોય છે એની વાતને ધ્યાનમાં લેતો નથી અને આગળ જવા માંડે છે। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। શું કરે છે કે નન્હી પોતાની માની પાસે નદીમાં જતી રહે છે। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी। माँ શું પૂછે છે નન્હીને કે તું ક્યાં રોકાઈ ગઈ હતી। नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। नन्ही શું બોલે છે કે माँ એક વીછી કાદવમાં ફસાઈ ગયો હતો, એને બચાવવામાં મને મોડું થઈ ગયું છે। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। શું કહે છે એની માँ ખૂબ જ પ્રસન્ન થઈ જાય છે અને પ્રસન્ન થઈને કહે છે કે આ તે ખૂબ જ સારું કાર્ય કર્યું છે। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक दिया। શું કહે છે નન્હી શું બોલે છે કે એના બદલામાં એણે મને ડંક માર્યો છે। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। શું माँ શું સમજાવે છે કે જે વીછી છે એ પોતાની ગંદી આદતનો ગુલામ બની ગયો છે। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। શું કહે છે કે તું એને ગમે એટલી વાર વારંવાર બચાવ પણ જે એને આદતથી ગુલામ થઈ ગયો છે, ખરાબ આદતથી ડંક મારતો જ રહેશે। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़वा कर रहूँगी। नन्ही શું બોલે છે એની માતાને શું કહે છે કે આજે એની ગંદી આદત છે એને હું છોડાવીને જ રહીશ। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। એટલે કે થોડા સમય વીતી જાય છે ત્યાર પછી પાછા એનો પ્રાણ સંકટમાં મુશ્કેલીમાં પડે છે। इस बार वह पानी की धारा में जा
ગીરા ઓર ડૂબને ઓર ઉતરને લગા એટલે કે શું છે કે પાણીની ધારાની પાસે એ ડૂબવા માંડે છે. મોત સામને દેખકર બિચ્છુ કો નન્હી કી યાદ આ ગઈ એટલે કે મૃત્યુ સામે જોઈને એને બિચ્છુને એટલે કે વીછીને પાછું કોણ યાદ આવે છે? નન્હી યાદ આવે છે. વહ નન્હી કો પુકારને લગા એટલે કે પાછો નન્હીને બોલાવે છે. નન્હીને ઉસકી કરુણ પુકાર સુન લી એટલે શું કહે છે કે એની દયામણી અવાજને પાછું સાંભળી લે છે. વહ ઝપટ કર બિચ્છુ કે પાસ આ ગઈ એટલે શું કહે છે કે ઝપાટા બંધ પાછી વીછીની પાસે આવી જાય છે. સહસા ही उसके मन में विचार आया એટલે કે તરત જ અચાનક જ એના મનમાં વિચાર આવે છે. अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी શું વિચાર આવે છે કે હવે આ ગંદી આદતવાળા સ્વભાવવાળા વીછીને હું નહીં બચાવું. બિચ્છુ ગીડગીડાને લગા એટલે શું કહે છે કે જે વીછી છે એ ખૂબ જ કરગરવા માંડે છે. બહન મુझ પર દયા કરો શું કહે છે બિચ્છુ કે તમે મારી પર દયા કરો. નન્હી કા મન ડોલ ગયા એટલે શું કહે છે કે એનું મન પરિવર્તન થઈ જાય છે, મન પીગળી જાય છે. उसने सोचा हो सकता है कि उसे अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो એટલે નન્હી શું વિચારે છે કે એણે પોતાની ગંદી આદત છોડી દીધી હોય. નન્હીને બિચ્છુ કો દોબારા જીવનદાન દિયા એટલે શું નન્હી પાછી વીછીને નવું જીવનદાન આપે છે. बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार डंक मारने के लिए आगे बढ़ा એટલે કે શું કહે છે કે વીછી પોતાના સ્વભાવને અનુસાર પાછો ડંખ મારવા માટે આગળ વધે છે. નન્હી ઉસકા ઈરાદા સમજ ગઈ શું કહે છે કે નન્હી એના સ્વભાવ અને એના ઈરાદાને સમજી જાય છે. વહ મુસ્કુરા કર બોલી બિચ્છુ ભાઈ ઠીઠક ક્યું ગયે ડંખ મારો શું કહે છે તું શા માટે થંભી ગયો છે, ડંખ માર. બિચ્છુ શર્મ સે પાની પાની હો ગયા એટલે કે શું ખૂબ જ લજ્જિત થઈ જાય છે. વહ ખિસ્યા કર બોલા એટલે શું કહે છે કે ખૂબ જ લજ્જિત થઈને બોલે છે. બહન એક બાત बताओ मैंने सदाई तुम्हारे साथ विश्वासघात किया फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई की ऐसा क्यों શું કહે છે કે પોતે એકદમ લજ્જિત થઈ જાય છે અને કહે છે કે બેન તું મને એક વાત કહ કે કાયમ માટે મેં તારો વિશ્વાસઘાત કર્યો છે, તારી સાથે તારા વિશ્વાસને તોડ્યો છે તો પણ તે તારું કામ ભલાઈ કરવાનું જ છે, તે મારી સાથે કેમ ભલાઈ જ કરી છે. નન્હી બોલી ભલાઈ કરના મેરા સ્વભાવ હૈ નન્હી શું કહે છે કે ભલાઈ કરવાનો મારો સ્વભાવ છે. મેં તુમસે બદલા લેને કે लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूँ શું કહે છે વીછીને કે હું તારી સાથે બદલો લેવા માટે મારી સારી આદત શું કરવા છોડી દઉં. मेरा काम बचाना है मैं मुसीबत में પડે કો બાર બાર બચાતી રહુંગી શું કહે છે કે મારું કામ બચાવવાનું છે, જે પણ મુશ્કેલીમાં હોય છે એને વારે વારે બચાવતી રહીશ. तुम्हारा काम डंक मारना है तुम मारते रहो देखती हूँ कौन जीतता है શું કહે છે કે તારું કામ શું છે ડંખ મારવાનું છે, તું ડંખ મારવાનું કામ કર હું જોઉં છું કે કોણ જીતે છે. बिच्छू पछतावे से भर गया और बोला नन्ही बहन आज तुम जीत गई એટલે શું છે વીછીને પસ્તાવો થાય છે અને શું કહે છે કે નન્હી બેન તું આજે જીતી ગઈ છે. मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा શું કહે છે વીછી આજે વચન આપે છે નન્હીને કે હવે હું કોઈ પણ નિર્દોષ પ્રાણીને ડંખ નહીં મારું. नन्ही खुश होकर नदी में चली गई. माँ ने आज फिर पूछा बेटा कहाँ देर कर दी એટલે નન્હી ખુશ થઈ જાય છે અને નદીમાં જાય છે ત્યારે માં એને પાછી આજે પૂછે છે કે બેટા તને આજે પાછી કેમ વાર લાગી. નન્હીને પૂરી ઘટના બતા દી એટલે કે શું નન્હી પાછો બધો જ બનાવ જે ઘટના ઘટી હતી એ જણાવે છે. માં પ્યાર સે બોલી પ્યારી સમજદાર નન્હી એટલે કે શું માં ખૂબ જ પ્રેમથી બોલે છે કે મારી પ્યારી અને સમજદાર નન્હી. भले लोग अपनी बार बार की भलाई इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते हैं શું કહે છે કે લોકો ભલે વારંવાર ખરાબ કાર્ય કરે છે પણ આપણી ભલાઈ કરવાનું જે આપણું કામ છે એ જે ખરાબ લોકો હોય છે એને સારા માણસ સારા બનાવવાનો રસ્તો બતાવે છે. નન્હી પ્રસન્ન હોકર ઠીરકને લગી એટલે કે શું કહે છે કે નન્હી ખૂબ જ ખુશ થઈ જાય છે અને એ નાચવા લાગે છે.
तो विद्यार्थी मित्रों, यह कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि सबका स्वभाव एक जैसा होता नहीं है। अच्छे स्वभाव वाले लोग हमेशा अच्छे काम करते हैं, वे दूसरों की भलाई करते हैं। बुरे स्वभाव वाले लोग बुरे काम करते हैं, जो उनका भला करते हैं उनके साथ भी वो बुरा व्यवहार करते हैं। तो हमें किसी भी स्थिति में किसी का बुरा करना नहीं चाहिए। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर शब्दार्थ लिखे हैं, वो हमें अपनी नोटबुक में लिखने हैं। मुहावरे भी देखकर ही हमें लिखने हैं। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्य में किससे किसे कहा है और क्यों कहा है, उसके बारे में हमें लिखना है। माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़वा कर रहूँगी। यह वाक्य नन्ही अपनी माँ से कहती है, लेकिन क्यों कहती है? क्योंकि उसे विश्वास है कि वह बिच्छू की डंक मारने की आदत छुड़वाना चाहती है, इसीलिए। इसके बाद है क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। यह वाक्य बिच्छू नन्ही से कहता है कि नन्ही का उपकार भूलकर वह उसे डंक मार दिया था। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा है, क्योंकि बिच्छू की बुरी आदत के बारे में वह चेतावनी देना चाहती है। भलाई करना मेरा स्वभाव है। यह वाक्य नन्ही बिच्छू से कहती है, क्योंकि बिच्छू ने क्या किया था? विश्वासघात भूलकर उसे उसकी मदद की थी। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा, क्योंकि नन्ही के विश्वासघात करने पर उसे बहुत पछतावा हुआ था। उसके बाद है यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते, सोचकर कहिए। तो यह हमें कहानी में हमने पढ़ाई की है, तो हम अपने आप से यह लिख सकते हैं। तो उसके बाद है स्वाध्याय। नन्ही कौन थी? नन्ही एक बतख थी। बिच्छू कहाँ फंस गया था? बिच्छू दलदल में फंस गया था। बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? क्योंकि वह जीवनदान देने वाली बतख को ही डंक मारने चला था। नन्ही ने क्या निश्चय किया था? नन्ही ने यह निश्चय किया था कि मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? क्योंकि वह दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की थी कि बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसीलिए उसने बिच्छू को बाहर निकालकर बचाया। बिच्छू ने स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? क्योंकि वो अपने स्वभाव के बारे में कहता है कि वह बुरी आदत का गुलाम हो गया है। उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए, लेकिन वह बार बार डंक मारता ही रहेगा। नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? कि बिच्छू कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती ही रहूँगी। और यहाँ पर हमें सही क्रम में लिखना है। तो पहले कौन सा क्रम आएगा? कौन सी घटना हुई थी कि नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा था। उसके बाद है कि नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई थी। उसके बाद है कि नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। उसके बाद बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। और आखिर में क्या आता है कि नन्ही अपनी माँ के पास चली गई थी। उसके बाद है कि हमें 5 संज्ञा शब्द ढूंढने हैं और उसके वाक्य प्रयोग करने हैं। तो बिच्छू का हमें यहाँ पे उदाहरण दिया है, तो हम उसके बाद नन्ही एक बतख का नाम था। स्थान यानी कि मुंबई में देखने लायक कई स्थान है। मुसीबत यानी कि मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता की। पानी का हमें दुरुपयोग करना चाहिए नहीं। आदत यानी कि सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है। इसके बाद है कि इकाई प्रयुक्त मुहावरे में किन्हीं 3 मुहावरे को रेखांकित कीजिए, उनका अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें शब्दार्थ के नीचे मुहावरे
दिए गए तो हम उसको देखकर ही उनका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है समानार्थी शब्द खोजकर हमें लिखना है। स्थान का क्या होता है? जगह, यानी कि वह अच्छे बुरे लोग वह जगह पर पाए जाते हैं। उसके बाद है स्वभाव, यानी कि प्रकृति, वह अच्छी प्रकृति का आदमी है। मुसीबत यानी कि संकट में धीरज से काम लेना चाहिए। प्रसन्न यानी कि खुश, आज मैं बहुत खुश हूँ। थिरकना यानी कि नाचना, वर्षा के बादल देखकर मोर नाचने लगता है। उसके बाद है हमें शब्दकोश को क्रम में लिखना है। पहले क्या आएगा? डंक, उसके बाद नदी, बिच्छू, मुसीबत और शैतानी। उसके बाद है कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर दो दो वाक्य में लिखिए और कहानी बनाइए। तो यहाँ पे हमें कौन सा चित्र में दिखाई दे रहे हैं? कबूतर और चींटी। तो हमें चित्र के आधार पर कहानी लिखनी है। तो मैं इसके बारे में आपको PDF में लिखना है, वो भेज दूँगी। उसके बाद है कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। यह हमें अनुमान देकर लिखना है कि यहाँ पे एक्सीडेंट होने यानी कि अकस्मात होने के बाद क्या हुआ होगा, यह हमें अपने शब्द में लिखना है। तो मैं इसकी सारी PDF में आपको